Good morning. Welcome to all of you to our LCC, digital world of LCC. Okay. Yesterday we have discussed about the modern method of journal. Okay. Yesterday I also given these are the classwork. Yesterday I have given. Okay. Let me discuss first. Then after we will discuss. Number 1, Pragya Smita started a new business with cash of rupees 10 lakhs. Okay. Then what will be the journal entry? Check it. Okay. Cash and Pragya Smita's capital account. Here to our business, cash increases. That's why cash will be debited, and Pragya Smita's capital also it will be also increases. Then the cash account will be debited to Pragya Smita's capital account. Clear? Check it whether you are correct or wrong. She paid salary of rupees 7,000. Then find out two account, salary, another is cash. If cash, I have already said, if cash, then 50% of the problem is solved. Then here she paid salary of rupees 7,000. That means here cash decreases after payment, then it will be credited, then salary will be debited because salary is expenses. I have already discussed. Okay. Next, those were absent in the previous class, then must go through the previous class. Purchased a machinery from Shruti. श्रुति से हम मशीनरी खरीदे हैं तो क्या होगा, वो कैश में या क्रेडिट में? ऑब्वियसली क्रेडिट में, क्योंकि ऑन कैश यहाँ पर लिखा ही नहीं है. तो क्या होगा, एक श्रुति होगा, दूसरा मशीनरी होगा. हम जो मशीनरी खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रहा है. एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट. तो श्रुति होगा क्रेडिट. तो एंट्री होगा क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू श्रुति अकाउंट. नेक्स्ट, कैश सेल्स टू अर्पिता. हियर कैश इज given, that's why the name has no importance. That's why two account, cash and sales. Okay, cash होगा तो क्या होगा, वो हो गया asset. Sales होगा तो क्या होगा, वो हो गया revenue, that is income. Okay, यहाँ पर कैश आ रहे हैं तो क्या होगा, asset increase होगा. Obviously जब हम कुछ भी बेचते हैं तब हमारे बिजनेस को क्या होगा, पैसा आ रहे हैं. तो पैसा अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, कैश विल बी इंक्रीज्ड. तो दैट्स व्हाई द टोटल कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. ओके. नेक्स्ट, मोटर कार परचेज्ड फ्रॉम नेहुप्रीत ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट है तो नेहुप्रीत का नाम इंपॉर्टेंट है. मोटर कार है तो परचेज का काम का नहीं है. ओके, क्योंकि इफ स्पेसिफिक एसेट has been given, then purchase or sales has no importance. That's why motor car and Nehupreet. Motor car is a assets. Whenever we purchase some asset, then our total asset will be increased. That's why if asset will be increased, then it will be debited. Already I have given OILA and LIC. OILA for A for asset, E for expenses, L for losses. Asset, expenses, losses. If it will be increased, then it will be debited. LIC, liability, income, capital. If it will be increased, then it will be credited. Okay. Next, goods purchased of rupees 20,000. It's very interesting. Okay. Listen carefully. Goods purchased of rupees 20,000, out of which 50% paid now. Here purchased और क्या होगा, कुछ कैश में है और कुछ क्रेडिट में है. अगर हम कुछ भी खरीद रहे हैं वो भी क्रेडिट में तो क्या होगा, यहाँ पर एक होगा क्रेडिटर. अच्छा, तो पहले क्या होगा, मैं ये इरेज कर देता हूँ. नहीं, बिना इरेज करके भी हो जाएगा. गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 20,000, आउट ऑफ विच 50% पेड नाउ. 20,000 हम गुड्स खरीद रहे हैं, 50% अभी दे रहे हैं, तो 50% क्या होगा, 50% होगा क्रेडिट परचेज है. तो क्या होगा, 20,000 का 50% 10,000, 10,000. तो 10,000 क्या से, 10,000 क्रेडिट है.
तो एंट्री क्या होगा, हम जब परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो क्रेडिट क्या होगा, जो कैश जा रहे हैं, जो क्या, क्यों कैश जब जा रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट। तो ऐसे होगा एंट्री इसका, परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना 20,000 टू कैश अकाउंट हाउ मच 10,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000, क्योंकि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट द पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर। ओके, थर्ड लास्ट एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश ऑफ रुपीज 5,000। जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं दिनेश से तो क्या हो रहा है, कैश बिजनेस को आ रहे हैं तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश अकाउंट। The next topic is loan given. Loan given to Ram of rupees 10,000. राम को हमने लोन दिया है तो क्या होगा, पहले दो अकाउंट है, क्या क्या होगा, एक होगा लोन गिवन टू राम, दूसरा होगा कैश। जब हम कुछ भी किसी को दे रहे हैं तो कैश फॉर्म में तो क्या होगा वो, अच्छा यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, आ रहे हैं या जा रहे हैं, ओब्वियसली जब हम लोन दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस से कैश जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जो कैश जा रहे हैं तो क्या होगा, वो क्रेडिट, तो ये क्या होगा, डेबिट। अच्छा ये भी करके देख लो, इफ लोन गिवन टू राम देन राम विल बी आवर what debtor, that's why it will be obviously debtor increases, asset increases, क्या होगा, obviously debit होगा। तो ये डेबिट ये क्रेडिट, नहीं तो मतलब अच्छे से ये जो है जो फॉर्मेट है पहले देख लो कि क्या होगा। अगर कैश बिजनेस को आ रहे हैं तो डेबिट होगा, जा रहे हैं तो क्रेडिट होगा। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, लोन गिवन टू राम, तो एंट्री क्या होगा, लोन गिवन टू राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, ऐसा होगा एंट्री, लोन गिवन टू राम, ऐसे भी लिख सकते हैं, लोन टू राम भी लिख सकते हैं। ओके, लोन गिवन टू राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हाउ मच 10,000। नरेशन में लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप लोग जरूर लिखिए, बीइंग लोन गिवन टू राम। ओके, अच्छा ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि ऐसा, मैं जो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, लोन गिवन की जगह मैं लिख लेता हूं लोन टेकन फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 10,000। तो यहां पर क्या होगा, लोन टेकन फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 10,000, तो क्या होगा, लोन टेकन, यहां पर देखो लोन टेकन फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 10,000 ऑन कैश। ओके, तो यहां पर क्या होगा, दो अकाउंट पहले ढूंढना है, लोन टेकन फ्रॉम राम यहां पर लिखा हुआ है और कैश है। तो देखो जब हम किसी को लोन दे रहे हैं तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। जब हम किसी से लोन ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर होगा तो क्या होगा, लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी होगा तो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली जब हम किसी से लोन ले रहे हैं तो हमारे लायबिलिटी इंक्रीज होगा। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, कैश। पहले वो देख लो हो रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लोन जब हम ले रहे हैं तो बिजनेस को कैश आ रहे हैं या जा रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो ऐसा होगा एंट्री, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम राम अकाउंट। ऐसे होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम राम अकाउंट। ओके, 10,000 नरेशन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम राम। ओके, ठीक है। फिर दूसरा कंसेप्ट, ये एक स्पेशल एक्सपेंडिचर है, तो ये स्पेशल केसेस है, तो ये ध्यान से सुनो। इफ सैलरी पेड, मैं तीनों फॉर्मेट लिख लेता हूं पहले। इफ सैलरी पेड ऑन कैश ऑफ रुपीज 5,000, नेक्स्ट सैलरी, आप भी लिख लो थोड़ा, सैलरी पेड टू
राम ऑफ रुपीज 5000. नेक्स्ट, कैश पेड टू राम ऑफ रुपीज 5000. ओके, तीनों में क्या डिफरेंस है वो मतलब थोड़ा कंसंट्रेटिवली सुनो, केयरफुली सुनो मैं जो बोल रहा हूँ. ओके, सैलरी पेड ऑन कैश. ओके, सैलरी हम पेड करें, यहाँ पर दोनों अकाउंट ढूंढना है. क्या होगा, एक होगा सैलरी, दूसरा हो गया कैश. हम जब सैलरी दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस के जो कैश है वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, गिर रहा है. जब हम दे रहे हैं तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा. कैश एक एसेट है, जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा. ओके, इसलिए ये तो कैश है, क्रेडिट है. सैलरी क्या होगा, ऑब्वियसली डेबिट होगा. कैसे, सैलरी एक एक्सपेंसेस है, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट. अच्छा, नहीं तो सिंपली फंडा क्या है, जब कैश आ रहे हैं या जा रहे हैं, क्या हो रहा है, जा रहे हैं. जा रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट, ऑब्वियसली खत्म. तो एंट्री होगा क्या, एक नंबर का एंट्री होगा क्या, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. क्या होगा, 5000. नरेशन लिखना है, बीइंग सैलरी पेड ऑन कैश. ओके, ठीक है. दूसरा, सैलरी पेड टू राम, यहां पर दोनों अकाउंट है. क्या होगा, ये थोड़ा अच्छे से समझो. इफ इन दिस केस, इफ दिस टाइप ऑफ कैश विल बी गिवन, देन what is given is important, to whom given it is not important. क्लियर है, फंडा ध्यान से, मतलब ध्यान से कंसंट्रेटिवली सुनो, पहले हम बोल रहा हूं. what is given is important, to whom it is given it is not important. to whom it is given, Ram, it's not important. what is given, salary, it's important. ओके, तो क्या होगा, सैलरी पेड है तो सैलरी तो हम ऑब्वियसली कैश फॉर्म में ही देंगे ना, तो सैलरी होगा और दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश होगा. तो जब हम सैलरी कैश में देंगे तो यहाँ पर कैश आ रहे हैं या जा रहे हैं, जा रहे हैं. जा रहे हैं तो क्या होगा, जा रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, वो क्रेडिट ही होगा. जा रहे हैं तो क्रेडिट, आ रहे हैं तो डेबिट. सिंपली फंडा है, कैश आ रहे हैं तो डेबिट, जा रहे हैं तो क्रेडिट. ओके, सैलरी पेड टू राम, तो क्या होगा, यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं तो कैश, जा रहे हैं तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा. तो एंट्री क्या होगा, नंबर 2, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कितना, 5000. नेक्स्ट, थर्ड, कैश पेड टू राम. हियर सिंपली कैश पेड टू राम, दैट इज कैश एक राम है. कैश जब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आ रहे हैं या जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट. तो डेबिट कौन होगा, राम. राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश. ठीक है. दूसरा फंडा, चैरिटी ऑफ रुपीज 10,000. यहां पर कुछ लिखा ही नहीं है, क्या होगा, मतलब सिंपली चैरिटी ही है, कैश है या काइंड है, कुछ लिखा ही नहीं. अगर ऐसा हो रहा है कि सिंपली चैरिटी मतलब गिवन, देन it is always given in the form of cash. Okay, if specific charity is not given, only charity is given, that means the charity is given on in the form of cash. Okay, तो चैरिटी दूसरा अकाउंट होगा क्या, कैश. देखो पहले ध्यान से, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें. ओके, तो क्या होगा, चैरिटी ऑफ रुपीज 10,000, दैट मीन्स चैरिटी गिवन ऑन कैश. तो दोनों अकाउंट क्या होगा, एक चैरिटी और दूसरा वाला कैश. अच्छा, चैरिटी होगा तो ये क्या होगा, एक्सपेंसेस हो गया. कैश एसेट्स. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मतलब सबसे मतलब अच्छी चीज क्या है, यहां पर हम चैरिटी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैश आ रहे हैं या जा रहे हैं, ऑब्वियसली जा रहे हैं. ओके, तो जा रहे हैं तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा. तो डेबिट क्या होगा, चैरिटी. तो एंट्री क्या होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ऐसा एंट्री होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग चैरिटी गिवन ऑन कैश. हाउ मच, 10,000. क्लियर, एनी डाउट ऑन इट. ओके, थैंक यू. इफ ऐसा होगा कि चैरिटी ऑफ रुपीज 10,000
गुड्स, ऐसे लिखते हैं, पूरा एक अच्छे से सेंटेंस लिख लेते हैं, गुड्स डोनेटेड ऑफ रुपीज 5000। मतलब यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, रॉ मटेरियल दे दिए, तो क्या होगा, वो क्या होगा, गुड्स हम डोनेट कर रहे हैं, तो एक हो गया क्या है, गुड्स, दूसरा हो गया क्या है, डोनेट कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पर क्या होगा, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। कैसे, डोनेशन है, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेंसेस, ये गुड्स नहीं होगा, इस पर लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, गुड्स का भी अकाउंट नहीं होगा, ये होगा परचेजेस अकाउंट। ओके, परचेजेस अकाउंट, तो ये भी हो गया एक्सपेंसेस। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, हमारा स्टॉक हम कंसीडर करेंगे। ओके, अच्छा, तो डोनेशन कर रहे हैं हम, गुड्स डोनेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर अगर कैश डोनेशन करते होंगे तो डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यहाँ पर गुड्स है तो लिखेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। ओके, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या होगा, ऐसा होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 10,000। यहाँ पर दो अकाउंट ढूंढना है, क्या क्या होगा, कैश और बैंक, ये डिपॉजिटेड इनटू ये वाला नहीं होगा कभी भी। ओके, तो क्या होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जब हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक में, तो हमारे बिजनेस से पैसा जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, अच्छा पहले मैं मतलब अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, फिर वो वाला फंडा में समझ रहा हूँ। कैश क्या हो गया, एसेट्स, बैंक क्या हो गया, एसेट्स। जब कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो ये एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट हो गया। समझ में आ गया। अच्छा, जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो बिजनेस में कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट हो गया। ओके, वही है। ओके, जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट ऑब्वियसली। मतलब ये चीज हमेशा ध्यान से सुनो, बिजनेस से कैश जा रहे हैं तो क्रेडिट, बिजनेस को कैश आ रहे हैं तो डेबिट। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला कैश डिपॉजिटेड वाला हो गया है, वो क्या हो गया, डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहां पर जा रहे हैं तो क्रेडिट होगा, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पर एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लिख लो कैश अकाउंट 10,000। फिर ये तो हो गया 1। नंबर 2, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 5,000। बैंक से हम पैसा निकल रहे हैं। अच्छा, जब बैंक में पैसा, अच्छा पहले क्लासिफाई कर लो कैश एंड बैंक। अच्छा, यहाँ पर जब बैंक से हम पैसा निकल रहे हैं तो कैश क्या क्यों हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा, बैंक। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश है क्या है, एसेट्स है, बैंक है क्या है, एसेट्स है। ओके, जब हम कैश विड्रॉन कर रहे हैं तो बैंक में, तो वो एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अच्छा, जब हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीजेस व्हाट, डेबिट। ऑलरेडी मैं बोल चुका था कि बिजनेस को अगर कैश आ रहा है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो क्या होगा 5,000। थर्ड वाला अभी सब लिख लो, बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 50। मतलब बैंक
हमारे अकाउंट के लिए वह हमको जो सर्विस दे रहे हैं इसलिए बैंक चार्ज कर रहे हैं, तो बैंक चार्जेस ऑफ ₹50 एंड बैंक ऑलवेज चार्जेस ऑन द अकाउंट बैलेंस। ओके, तो डायरेक्टली बैंक क्या करेगा, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वहाँ से डिडक्ट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर दो अकाउंट है, एक हो गया बैंक चार्जेस, दूसरा हो गया बैंक अकाउंट। ओके, ध्यान से सुनो, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस है। ये एसेट है, बैंक अकाउंट क्या होगा, एसेट है, ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस है। अच्छा, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट। अच्छा, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। अच्छा, बैंक हमारे जो बैंक बैलेंस है वहां से डिडक्ट कर लेगा, तो क्या हो गया, तो हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा, तो जो मतलब जितना अमाउंट बैंक में था वो वहां से क्या हो गया, गिर जाएगा, तो क्या होगा, बैंक वो एसेट गिर जाएगा, तो एसेट डिक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट, तो ऑब्वियसली वो डेबिट हो गया। तो एंट्री ऐसा होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्या हो गया, 50/50। अच्छे से ये लिख लो। हो गया, हो गया। अच्छा, ठीक है, तो अभी लिखेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, पहले समझो ये डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टीयर ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट का जितना भी वैल्यू मतलब कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके यूज होने के लिए, तो वो वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जो है जो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फिक्स्ड एसेट का जो इंक्रीज होना था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऐसा होगा क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑफ ₹10,000, मशीन के डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दो अकाउंट, डेप्रिसिएशन और मशीनरी। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंसेस है, मशीनरी क्या है, एसेट्स है। दो अकाउंट्स पहले क्लासिफाई करना है, फिर क्या होगा, हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल। पहले दो अकाउंट ढूंढ लिए, फिर क्लासिफाई कर लिए, फिर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो कैसे, अच्छा देखो, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस इंक्रीजेस व्हाट, डेबिट ऑब्वियसली, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। देखते हैं ऐसे हो रहा है कि नहीं। अच्छा, मशीनरी जब डेप्रिसिएट होगा तो उनका वैल्यू गिर जाएगा। अच्छा, मशीनरी एसेट डिक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट, डिक्रीज होने से क्या होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट हो गया, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। कैसे, 10,000 क्लियर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अगर ऐसा होगा फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है और फर्नीचर है, तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। लास्ट वाला हम देखेंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ओके, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑफ ₹1 लाख। हम एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, दो अकाउंट है, एक कैपिटल, दूसरा ऑब्वियसली कैश। ऑब्वियसली कैश मतलब कुछ मतलब बताया गया ही नहीं है, तो क्या होगा, वो कैपिटल, दूसरा हो गया कैश। अच्छा, जब बिजनेस को कैश आ रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट, वो क्या हो गया, कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट। याद करो, आई लॉ, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस एंड LIC। आई लॉ मतलब एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस, तो इंक्रीज होगा तो डेबिट, LIC इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पर तो एंट्री क्या होगा, ये हो गया कैश, ये बिजनेस को कैश आ रहा है,
तो क्या होगा, डेबिट। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। कैश है एसेट, कैपिटल है ऑब्वियसली, कैपिटल ही है, कैपिटल हेड में 6 हेड में जो मॉडर्न के 6 हेड थे। अच्छा, जब कुछ भी हम कैश बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे कैश क्या होगा, एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। एसेट इंक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, ठीक है, आज के लिए तो इतना ही है। बाकी जो है मतलब जो मतलब बाकी सब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिस्काउंट, जैसे कि बैड डेब्ट, जैसे कि लॉस, ओके, जैसे कि परचेज एंड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ऐसे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीएसटी ट्रांजैक्शन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है बाकी। तो इसलिए आप हर दिन मतलब रात को 9 बजे मैं वीडियो अपडेट करूँगा। आप हर रोज़ ऐसे ही जर्नल का वीडियो हर रोज़ देखते रहिए। ओके, कभी भी एक भी दिन मतलब मिस मत करिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी मैं थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो डिटेक्ट करेंगे आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो। HWA लिख लीजिए सारे। कृष्णा started a business. Krishna started a business with cash of rupees 5 lakhs. Goods purchased from Disha of rupees 7,000. Machinery sold to Pratap of rupees 20,000. Cash deposited into bank of rupees 1,000. Cash withdrawn from bank, सारे के सारे बच्चे लिख लो। कैश withdrawn from bank of rupees 500. Loan taken from Saipuju of rupees 10,000. Loan given to Deepa of rupees 9,000. Next, charity of rupees 5,000. 9 का क्या होगा, बाकी सबके क्वेश्चन तो हो गया है। कैश हो गया है, लोन भी हो गया है, चैरिटी, हाँ ये डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ रुपीज 200. लास्ट है एडिशनल कैपिटल introduced in the business of rupees 2 lakhs. ओके, सारे के सारे हो गया है। एडिशनल मतलब ये लास्ट पॉइंट नहीं दिखाई दे रहे तो मैं बोल रहा हूँ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस ऑफ रुपीज 10 lakhs। ये 10 जर्नल एंट्री है। क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग मतलब अच्छे से ये सुन लो, अच्छे से लिख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मतलब जो बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो सब करेंगे। अच्छा, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और अपने मतलब जो हर लोग जो फ्रेंड लोग हैं उनको बताइए
कि यहाँ पर हैं फ्री कोचिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर हर रोज़ वीडियो आ रहा है। तो आप जर्नल को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। और आपको जो जो पसंदीदा चीज़ है और जो टॉपिक में आप डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं वो कमेंट करके बताइए हमें, तो हम वही टॉपिक्स में वीडियो लाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।